I'm Saran's batchmate, one of your founders. Okay, I'm Saran's batchmate. I'm from English Journalism 910, and the question is divided in three parts. You know, I've been a big fan of your Scoop Poop. Hello. I'm sorry, I was saying hi to my friend. Okay, yeah, hey. So, anyways, the question, like you pick up the content from various websites, give them the credit, and come with different stories. Okay, and then you get a lot of likes, and the story gets popular. So the question is that what is the vision of this? You know, like in United States, like they're moving out of the Facebook. You know, they're closing the accounts and going back to the postal systems. Okay, so I agree. There's social media, Twitter, Pinterest, YouTube, and a lot of things. But there's an end to it. What is the vision of you like 5 or 10 years down the line? Because you're talking about recruitment, you're talking about stability, you're talking about taking journalism, to a next level. Because like Huffington Post going to be tying up the Times of India, and they'll be competing with you on the same ground what Veg Momos does, right? So I'm sorry to interrupt you. Could you give me phase one of your question? yeah, first is what's your vision? Second, Okay. No, Right. I'll check this. No. No, I'll check this one. ये सेशन फ्रेशर्स इंस्ट्रक्शन है आप और हमने पहले ये कहा ये सेमिनार आप इसको बाकी चीजों पे मत लीजिए Okay. Excuse me, 1 second. You're next. Okay. Sir. Guys, please maintain decorum. Please, I request you. I request that you please maintain decorum. Everyone's questions will get What's answered. a particular kind of algorithms on which the articles come? You have to ask me one Yeah, question that is pertinent. one to is this vision, and once the Facebook changes the algorithm, how would you deal with it, sir? So, basis. exactly. So the way we're going to deal with this is we keep adjusting our social media strategies and our delivery portals, and it's Pinterest, not Pinterest. Question is, I want to be a food journalist, so openings of food journalism in India. Second question, I work with an NGO called Blood Connect. It works in the field of voluntary blood donation, and because I'm in this course, I've been appointed as the media manager, and I've not been able to do much for this organization. It's a four-year-old organization. We've been based in Delhi. Now we're expanding to 6 different cities. And it's kind of big because we have around 75,000 likes on our Facebook page. So I want suggestions on how we could improve that. Now 15 years old and there are about 250 full-time people in the team, and I have friends like these, but I have never gone to them to never ever gone to them to print even a single story. Never. And I know if I ask Nilanjana, I mean, we are batchmates of last say almost 20 years plus. Meenakshi was with BBC. I mean, she has her own network. We never use that. Our Facebook page has about 92,000 likes after 15 years. Because we never ask people to like our page. That's a strategy. So I think what is important in the voluntary work, in all the work, but primarily in the voluntary work, that do not talk much about it, because there are two ways of working the way we see. You talk about the work, the other thing is that the work talks about you. We believe in the second one. मेरा सवाल राणा सर से है। मेरा नाम अभिनव पांडे, मैं RTV से हूँ। सर, मीडिया फील्ड में आने बहुत सारे पत्रकार ऐसे मिलते हैं कि क्या कर रहे हो यहाँ पे, इसमें क्यों आ गए हो, तुम कुछ और कर सकते हो, सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरो, ये वो। अभी तुम्हारे अंदर जोश है, तुम दिन रात काम कर सकते हो। जब बाद में शादी हो जाएगी, बीवी कहेगी छुट्टी नहीं मिल रही, सारी दुनिया की छुट्टी रहेगी, छोड़ दो ये क्या है ये। सर ऐसा क्यों सर कि कहते हैं कि मीडिया में पैसा नहीं है, तो क्या हमें भी कम पैसे मिल... Okay, you. गोल बना पड़ेगा। All right, guys, please. So many cobras here. मेरा नाम अभिषेक दास है। If you want to ask, just ask one question. आखिरी है। तो ऐसी क्या परिस्थितियां थी जो हॉस्टल देना बंद कर दिया गया और लड़के और लड़कियों को अलग कर दिया गया? तो आपके लिए एक लकीर खींची गई चल रहा। आप जिस पेशे में जाना चाहते हैं उसकी आज की ज़रूरत क्या है, आपको नौकरी कैसे मिली और कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं।
हम इसके लिए बैठे हुए हैं। दुनिया भर के बहुत सवाल होते हैं, नैतिकता के बहुत तकाजे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके उसूल से और मेरे उसूल से टकरा सकती हैं। हम इस बहस के लिए बैठे नहीं हैं। मुझे लेकिन तकलीफ इस बात की है कि जब कभी भी आपको यह कहा जाए कि आपको बात इस पर करनी है, मैं सिर्फ एक जर्नलिस्ट के लिहाज से कहता हूँ कि जब खबर जैसी होती है उस खबर के आजू बाजू की चीज़ जब कभी आदमी कोई पकड़ता है तो मैं कहता हूँ मेरे पेश का नहीं, हटाओ इसको। क्योंकि आपके लिए जब एक लाइन दे दी गई है कि आपको खबर इसी पे करनी है, तो फिर उसके इतर जा करके आप दुनिया जहान का पूरा कड़कट आप ला करके वहाँ रख दें, फिर आप कंफ्यूज हैं। आपका दिमाग फोकस्ड होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि इस ज़िंदगी में आप मानो कि जितना आसान अपने आप को आप करोगे, चीज़ों को जितनी आसानी से आप देखोगे, जितना आसान बोलोगे आप, जितना आसान लिखोगे, मेरे बोलने और लिखने के भीतर कोई फ़र्क नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि मैं आपकी तरह से नहीं आया हूँ, मैं भी उसी हिंदी पट्टी से आया हूँ जिसने पाठ्यक्रम लिखना सिखाया है, लेकिन मैं पाठ्यक्रम नहीं बोलता है इसलिए कि मेरे पेशे की ज़रूरत नहीं है। टीवी में आने वाले लोग जिस तरह से बोलते हैं उसी तरीके से उनको लिखना चाहिए। जितनी आसानी से अपनी बात समझा सकते हैं उतनी आसानी समझाना चाहिए। ज़िंदगी बहुत आसान होती है, लेकिन जब कभी भी आप आजू बाजू सवाल उठाते हो, इसका मतलब ये है कि आप कंफ्यूज हो। यह भी आपकी ज़रूरत है कि आप समझो कि मुझे कहाँ किस तरह की बात करनी है और क्या नहीं करनी है। ऐसे तो 1000 सवाल होंगे जिन पर आप बहस कर सकते हो या पता नहीं कितने दिन का सेशन चल सकता है, लेकिन आप जिसके लिए हो उस पर बात करो। है ना, वो ऐसा नहीं है कि 24 घंटे हमारे दिमाग में भरा रहे, हम हर चीज़ को बहस पे ही उतार दें। मतलब कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव सोच बहुत ज़रूरी है। हम हर चीज़ को बहस में ही लाएंगे, हम हर चीज़ पे सवाल ही उठाएंगे, ऐसे सॉल्व नहीं होती चीज़ें। सवाल सिर्फ करियर का नहीं है, सवाल हम सबकी अपनी ज़िंदगी का भी तो है। हमको एक अच्छी ज़िंदगी भी तो जीनी है। हम हर चीज़ को सिर्फ बहस में मारेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एक एक्टिविज्म की भी हमारी अपनी औकात होनी चाहिए ना। मतलब पहले ग्राउंड में कुछ कर तो लें, पहले कुछ हाथ पैर रगड़ लें, घर का सामान बिक जाए, कुछ खड़ा कर लें, उसके बाद तो हम कहें कि हाँ भाई हमने कुछ किया, अब हम जरा बातें करते हैं। मेरा सवाल राणा सर से है। सर नमस्ते, मेरा नाम सूरज पांडे है और 21 सितंबर 2013 को आप ही ने मुझे नौकरी दी थी और मैं वहाँ से आया। लेकिन सर मतलब ऐसा मुझे लगता है कि आपके बारे में बहुत सुना था, मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, हूँ आपका भी, लेकिन मुझे न जाने क्यों ऐसा लगता है शायद मुझे यहाँ नहीं बोलना चाहिए खुले मंच पर, ये मुझे आपसे कहना चाहिए था, लेकिन अब मजबूरी है, मुझसे निकल गया। सर तो सर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मीडिया संस्थान के बाहर से दुनिया बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब आप अंदर जाएँ जो घटिया राजनीति होती है, हर जगह की बात है ये, आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपको। Sorry, this session is not about this. मैं भी मीडिया में ही के बारे में बहुत ज़्यादा पता और आपको जब प्री कंसीव नोशन लेके जाएंगे तो जिंदगी आसान नहीं होती। जिस जिंदगी आसान होने की बात बार बार राणा जी कर रहे हैं, मैं इसका बहुत। आप अपने मोहल्ले के चौकीदार को जिसको महीने के सिर्फ 30 रुपए देते हैं, यानी 1 रुपए सिर्फ 1 दिन का देते हैं, उससे रात में ये पूछते हैं कि तुमने कल खटखट नहीं किया था, ठीक है? तो आप जिस स्थिति की बात कर रहे हैं तो कृपया आप अपने आप को उस लायक बनाइए। और अगर आप स्ट्रेटेजिक हैं, अगर आप में काम करने की सलाहियत है तो काम करने के मौके मिलते हैं, लिखने के मौके मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि लिखा नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं है कि काम लोग नहीं कर रहे हैं अलग हटकर। आप में से कितने लोग इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं मुझे नहीं मालूम। आप में से कितने लोग पेज 1 एंकर पढ़ते हैं मुझे नहीं मालूम। आप में से कितने लोगों ने राइट्स के और कितने लोगों ने कश्मीर की खबरें पढ़ी हैं इंडियन एक्सप्रेस में मुझे नहीं मालूम। लेकिन जर्नलिज्म हो रहा है, अगर जो लोग जर्नलिज्म करना चाह रहे हैं। आप लोगों ने कितने लोग उसकी कॉपी राइटिंग पढ़ा है? ठीक है, धन्यवाद। कौन सा क्वेश्चन है? आप खतरनाक करें क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं मेरे पास है ही नहीं सर। क्वेश्चन इतना है कि जब आप लोग इस स्टेज पे थे, जैसे जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, तो आपके कुछ सीनियर्स थे, आप कुछ लोग शायद एक ही बैच से हो, इसलिए पूछ रहा हूँ, और हमारी भी कुछ आपसे एक्सपेक्टेशन है। तो आप अपने सीनियर्स से बेटर कैसे हमको देने वाले हैं, इसका कुछ विजन दे देते हैं, ज़्यादा बेटर होता है। और सर एक मिनट सुन लो सर। सीक्वेंस में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा
कि आपकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि जब आप लोग घर पे जाते थे तो आपसे कहते थे हाँ दिल्ली में लड़का पढ़ रहा है, कुछ कर रहा है, मतलब जर्नलिज्म का। हम जाते हैं तो पूछते हैं भैया इंडिया टीवी पे कब आ रहे हो, आज तक पे कब आ रहे हो। तो बहुत दुखी है, व्यथित हृदय से ये बात पूछ रहा हूँ सर। थैंक यू सो मच। सपने देखना, मैं 1 मिनट लूंगा क्योंकि उनका जवाब मैं चाहता हूँ कि देखिए, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है और हर इंसान का हक बनता है कि वो सपने देखे। आप इस पेशे में आए हैं तो आपका हक बनता है कि इस देश के जो सबसे बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, आप 5 उनकी स्क्रीन पर आप आएँ, आप अपनी बात रखें, आप बतौर एंकर, बतौर रिपोर्टर, बतौर प्रोड्यूसर अपना काम करें। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन देश का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। क्या यहाँ के स्टूडेंट को जा करके मेरे सामने या किसी भी मैनेजिंग एडिटर के सामने बैठ के ये कहना चाहिए कि मेरे भीतर उतनी काबिलियत तो है नहीं, लेकिन आप मुझे रख लो क्योंकि मैं IMC का हूँ? ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुन लो, IMC होने का मतलब ये है कि मेरी ज़रूरत जितनी है या तो उतने आप काबिल हो या उससे ज़्यादा हो, और मैं आपका हाथ पकड़ के बगल में बिठा लूँ। अपने भीतर की ज़रूरतों को, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन दुनिया में जो कंपटीशन जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से आपको अपने आप को इम्प्रोवाइज करना चाहिए, जिस तरीके से आपको लगातार दुनिया को समझना चाहिए और अपने आप को बेहतर करना चाहिए, अगर उस तरह से आप नहीं करते हो तो मेरे नौकरी दे देने से आपकी ज़िंदगी नहीं चल सकती है। कोई दूसरा मैनेजिंग एडिटर आएगा, वो आपको निकाल देगा। इसलिए आप इस बात जो आप कह रहे हैं ना कि आप अगर रात में कोई आदमी दरबान आपका काम नहीं करता है तो आप उसको वहाँ रहने नहीं देते, उसको पैसा नहीं देते। आप चाहते हो तो आपको खैरात दो। इस मानसिकता से बाहर निकलो। हिंदी पट्टी की मानसिकता बड़ी खतरनाक मानसिकता है कि मैं आपका इसलिए गाली दोगे कि हम तो घर जवाब की नहीं, नौकरी नहीं दिया। कम से कम ये तो होना चाहिए, होने चाहिए, और जो आप करने वाले हैं उसके बारे में। Some of us will come, we'll sit for an hour or two with the batch, क्योंकि अभी क्या होता है कि हम में से कुछ लोग गेस्ट फैकल्टी आते हैं, but we come for one particular course। तो हम ये कर सकते हैं कि हम लोग कभी ऐसे बैठे हैं, जितने भी 10, 20, 50 लोग जो भी इकट्ठे हों, और हम लोग बैठ के जनरल एक इंटरेक्शन करें। तो शायद ये सारी चीजें कहीं ना कहीं और बेहतर होती है जो हम और इंस्टीट्यूट में बहुतों में करते हैं, बट IMC में शायद अभी ये ट्रेंड नहीं है। Activities, please, if you want to organize them with the help of the Alumni Association, with the help of these very illustrious people who are here, please go ahead and do so. Coordinate with Dr. Anand Pradhan and get it done. और एक दो कपल भी आ जाएंगे तो बाकी सर मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि हम लोग जानते हैं, मैं शिवम, हम लोग जैसा sorry we'll have to cut this short. प्लीज एक सेकंड, लास्ट क्वेश्चन है, you can talk to them. लास्ट क्वेश्चन है, कंक्लूडिंग क्वेश्चन है, ये सबके लिए है ये। एक सेकंड I'm sorry guys, I'm sorry. आखिरी सवाल है। This is actually for the voter thanks that मेल ID alumni.imc@gmail.com। आपका सवाल जिनके लिए भी जो पैनल है, आप अपना सवाल और अपना जिनके सवाल हो आप मेल कर दीजिए, हम आपके लिए जवाब उनसे मंगवा के दे देंगे। एक दूसरा जो मंथली इन्वेस्टर के लिए हम सर ने कहा है, तो हम लोग इससे बात करते हैं आपस में कमेटी में, उसको किस तरह से किया जा सकता है, और IMC में जो फ्राइडे इवनिंग का प्रोग्राम है उसका कोऑर्डिनेट करके उसको मुझे कुछ करना है और भी आप लोगों से प्लीज। मसीह सर आप बोलना चाहते हैं? प्लीज आप बोलना। करंट बैच के लोग बचे हुए हैं या बाहर चले गए? तो ऊपर रख माइक, बल माइक। IMC का स्ट्रेंथ ये नहीं है, IMC के 4 डिपार्टमेंट में इतने स्टूडेंट नहीं हैं। हमने पिछले साल भी पेपर रीडिंग कंपटीशन करवाया था, अपूर्ण सर थे, निर्भय सर थे, अंशु सर भी थे। तो हम एसोसिएशन चलाते हैं, बुरा नहीं लगना चाहिए आपको, चैरिटी नहीं करते। तो अगर हम एसोसिएशन चला रहे हैं तो आपके लिए चला रहे हैं,
सीनियर्स यहाँ आए, नीलांजना मैम आई, काफ़ी बिजी रहती हैं, राणा सर आए, उन्नी सर आए, आधे घंटे के लिए आए थे। मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ, सबसे मैंने कहा था कि 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा और सबको मैंने पिछले 3 घंटे से यहाँ मतलब फंसा रखा है। और अगर आप उस पेपर रीडिंग कंपटीशन में जिसमें हमारा इन टर्म्स ऑफ बजट आप कहें 1 लाख रुपया खर्च हुआ, 19 स्टूडेंट आए थे। आज अच्छा अटेंडेंस है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि मैं एसोसिएशन के रूप में कहूँ कि हमने जो किया, जितने सीनियर लोगों को आपके लिए लाया, आपसे बात करने के लिए लाया, आप ये 25, 30, 40, 50 लोग आए तो क्या फायदा? 250 का कैंपस है, 50 लोग आएंगे क्या? नहीं, मैं ये अपने क्लास में जाके तो बताएंगे। Probably have the talent pool here that wants to do something. And I do think we should appreciate all the people who did come in because they want to. I have come to this campus after, I passed out in 1998, so it's like 16 years. I really loved it. I really loved it, and I think you guys are phenomenal. You guys are phenomenal. Keep your ideas open. Keep interacting. I like this. I like this openness of the way you guys just pass on a comment or something. It's good. It is good. It means that you guys are not आप लोग झिझक नहीं रहे हैं. This is the first good step. So keep it up. And as he said, we'd love to see more of you guys. And I just want to share a little, hope inside me. Yeah, that there is going to be something that will set them apart. Absolutely. Make us proud. Make us proud. That's it. स्टेज पे बैठे हुए हैं मीनाक्षी मैम, बाद में आई, उनका परिचय नहीं हुआ। तो मीनाक्षी मैम है, नीचे जो स्टेज के नीचे लोग हैं वो भी काफी काबिल लोग हैं। हमारे बीच हर्ष जी हैं, हर्षेंद्र वर्धन 2004 का कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के हेड हैं। गौरव दीक्षित हैं, मीडिया प्लानिंग में उनका 10 साल, गौरव सर नहीं है। आनंद सर है सामने बैठे, आपको यहाँ नीलांजना मैम की टीम है, NDTV.com के एडिटर हैं। बस अपनी टीम के मालिक है वो। तो आपका सवाल सिर्फ इनसे ही, अगर आप चाहते हैं कि आनंद सर को क्लास में आप चाहते हैं उनके लिए आप किसी दिन तय करके आप उनको बताइए एसोसिएशन में कि हम प्रसाद सर से मिलना चाहते हैं, हम संबित सर से मिलना चाहते हैं। हम फिर से इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर 1 घंटा दिन और टाइम दीजिए, ये आएंगे आपके साथ बैठ के घंटे बात करेंगे। आपका आने के लिए धन्यवाद। और सुनीला मैम का, मीनाक्षी मैम का, KM सर का, DG सर का, राणा सर का, वसीम सर का, नीलांजना मैम का, अंशु मैम का, सारे लोग यहाँ से वहाँ तक जितने लोग बैठे हैं, जितने सर हैं, आधे घंटे के नाम पे 3 घंटा दिखाने के लिए सॉरी।